Bismillahirrahmanirrahim. Well, dear students, Assalamu alaikum. Hoping all of you are fine. Well, beta, let's see what is going to be taught today. We will start our next lesson from book 2 and the title of the lesson is My Financial Career. आज हम अपना नया लेसन जो है नेक्स्ट लेसन नंबर 7 स्टार्ट करेंगे और उसका टाइटल क्या है जनाब? माय फाइनेंशियल करियर. फाइनेंशियल क्या होता है? फाइनेंशियल मीन मॉनेटरी. मॉनेटरी क्या होता है? मनी रिलेटेड, जिसे कहते हैं माली, माल, मनी रिलेटेड. और करियर क्या होगा? करियर मीन्स प्रोफेशन. करियर मीन प्रोफेशन और सम ऑक्यूपेशन. ऑक्यूपेशन, ठीक है जी. तो आप देखते हैं कि इस ऐसे का टाइटल है माय फाइनेंशियल करियर, यानी मेरा माली मुस्तकबिल. एक्चुअली दिस essay has been written by Stephen Leacock, and Stephen Leacock, he is famous, he is well known for writing humorous type of essays, and in a very humorous way he criticizes the follies of humans. And we see that the lesson in fact, or the essay in fact, is conversational throughout, and he has written this essay in highly humorous and highly impressive way, right? So let's see what is the part of the lesson. We see that once the salary of the writer was raised to $56, he wanted to save this extra amount, he wanted to save this spare amount, and the best solution was to deposit it into a bank. So he directly went to the bank, and he has also indicated that he ever got frightened whenever he stepped in a bank, because the clerks or the money or the windows or the cash counter, all these things made him sometimes confused, but lot of time confused. So we see that when he went to the bank to open his account to deposit his $56, he went to the accountant and asked him that he wanted to see the manager, because he was of the opinion that if you have to enter in a bank, if you have to if you want opening of a new account, you must consult, you must talk to the manager. So the manager was called, and the manager thought that he was perhaps a detective, he was a spy, he wanted to disclose, wanted to reveal some secret, and later on he thought that perhaps he was from any rich family, from wealthy family, and wanted to deposit a huge sum, a huge amount in the bank. But when the writer told him that he just wanted to deposit $56, the manager got annoyed. Rather, he was a bit displeased, and he called the accountant and asked him to open the account of this man. And after certain formalities, the account was opened and his name was entered in the register. And that moment, the writer realized that he should withdraw some money, somehow some $6 for present use. So he just brought all these things into the notice of the accountant. Checkbook was handed over to him, and he wrote down the sum in that check. And when he handed over to the accountant to be withdrawn, the accountant got surprised. He was amazed to see that the whole amount was written in the check, and he asked the writer if he was drawing every penny, and he replied yes, every penny. And in this way, out of his follies, he had to withdraw all his money. And when he came out of the bank, he found that the people, he heard the laughters of the people which were reaching to the ceiling of the bank. And after that, he decided to have no more banking, and decided not to go to bank anymore. And he also decided to keep his cash money in the pocket of his trouser, and also his coins into his socks. तो हम देखते हैं कि माय फाइनेंशियल करियर एक ह्यूमरस ऐसे है, मज़ाहिया से ऐसे है, और बड़े खूबसूरत अंदाज में स्टीफन लीकॉक ने अपनी एक एडवेंचर जो है आपको बयान की है, अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर किए हैं. वो ये कहता है कि जब कभी भी मैं किसी बैंक में गया हूँ तो बैंक को देखकर, बैंक के अंदर का माहौल देखकर मैं हमेशा फ्राइटेंड रहा हूँ, हमेशा खौफजदा रहा हूँ, मैं हमेशा स्केर्ड हो जाता हूँ वहाँ की तमाम सूरत हाल को देखकर. मिसाल के तौर पर वहाँ मौजूद क्लर्क, वहाँ के अकाउंटेंट,
वहाँ के कैश विंडोज़ और वहाँ जो मनी सेफ ये सब चीज़ें मौजूद हैं। वो कह रहे कि मैं ये सब चीज़ें देख के बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता हूँ। लेकिन एक दफ़ा क्या हुआ कि राइटर की सैलरी $56 तक हो गई, सैलरी में इजाफा हुआ, $56 उसकी सैलरी में इजाफा हो गया और उसने सोचा कि बेहतरीन इसका सलूशन क्या है कि मैं ये जो अपनी रकम है इसको बचत में ले आऊँ और बैंक में जमा करवा दूँ। तो जनाब उसे बैंक जाना पड़ा और बैंक जा जाकर क्या हिमाकतें उससे सरजद होती हैं, ये सब चीज़ें हम इस लेसन में पढ़ेंगे। कि सबसे पहले तो वो अकाउंटेंट के पास जाता है और उसे गलती से कह देता है कि मुझे मैनेजर से मिलना है, क्योंकि इसके जहन में एक आइडिया बन चुका है कि शायद जब भी बैंक हमें जाना है, कोई अकाउंट ओपनिंग होगी तो हमें मैनेजर से ही बात करनी चाहिए। मैनेजर जो है वो पहले तो उसे अपने सीक्रेट रूम में ले जाता है, प्राइवेट रूम में ले जाता है और वो ये समझता है कि शायद ये किसी खुफिया एजेंसी से आया है, कुछ सीक्रेट बताने के लिए आया है बैंक के हवाले से। लेकिन जब ये कहते हैं मैं किसी एजेंसी से नहीं हूँ, खुफिया एजेंसी से नहीं आया हूँ, तो राइटर तो बैंक मैनेजर जो है वो इमेजिन कर लेता है कि शायद ये कोई वेल्थियस्ट फैमिली का कोई रुकन है, कोई फ़र्द है, कोई बिग डिपॉजिट के साथ आया है, ह्यूज मनी लेके आया है, बैंक को बेशुमार अमाउंट यहाँ पर जमा करवाएगा, बैंक को मुनाफा देगा। लेकिन जब उसे पता चलता है ये भी नहीं है और ये तो सिर्फ़ और सिर्फ क्या है $56 उसको बैंक में एक छोटी सी अमाउंट जमा करवाना है, तो मैनेजर जो है पुरसकून तो हो जाता है लेकिन गुस्सा भी आता है उसे कि मेरा टाइम ज़ाया हो गया इस तरह से। तो वो अकाउंटेंट को बुलाता है और कहता है जनाब इसका अकाउंट खोल दिया जाए स्टेफन लीकॉक का। और स्टेफन लीकॉक कहते हैं और जब कहते हैं कि जब मैं अकाउंट खुलवाने के लिए कैश काउंटर पर गया हूँ, अकाउंटेंट के पास गया हूँ, तो अकाउंटेंट के पास भी काफ़ी हिमाकतें इससे सरजद होती हैं। इसने अपने पैसे जो होते हैं एक मुड़ी हुई बॉल की शेप में अपने हाथ में पकड़े होते हैं और यूँ फेंकता है जैसे उसके आगे, अकाउंटेंट के आगे जैसे कोई शोबदाबाजी कर रहा है, ठीक है ना, मैजिक ट्रिक दिखा रहा है उसे। बहरहाल इसका नाम एंटर हो जाता है, साइन ले लिए जाते हैं, चेकबुक इशू कर दी जाती है। इस मौके पर राइटर को ख्याल आता है वाई नॉट टू गेट सम मनी वाई नॉट टू विदड्रॉ सम मनी फॉर प्रेजेंट यूज़, कि क्यों ना मैं कुछ मनी जो है अपने मौजूदा इस्तेमाल के लिए निकलवा लूँ। तो लिहाजा वो क्या करता है, वो ये करता है कि एक चेक जो है उसको फिल करता है। उसने $6 लिखने थे और इसकी बजाय $56 ही लिख देता है। जब ये अकाउंटेंट को देता है, अकाउंटेंट हैरान हो जाता है कि अभी तो डिपॉजिट करवाए हैं पैसे और अभी ही विड्रॉ भी करवाए जा रहे हैं। तो इस तरह बड़ी मज़े का खेज सूरत हाल बन जाती है। सब लोग क्लर्क वगैरह अपना काम छोड़कर राइटर को देखना शुरू कर देते हैं। अब राइटर भी पजल्ड है, कन्फ्यूज़्ड है और वही कहते हैं हाँ मैं सारी रकम निकलवा रहा हूँ, और उससे कोई बात बन नहीं पाती और वही समझता है मैं कोई बात मज़ीद वजाहत में किसी चीज़ की नहीं कर पाऊँगा। तो वो शो करता है मैं क्विक टेम्पर बंदा हूँ और मैं किसी के रवैये से, यहाँ पर बैंक में किसी के रवैये से या स्टाफ के रवैये से मैं काफ़ी इनॉयड हुआ हूँ, इसलिए मैं सारा मनी जो है विड्रॉ करवा रहा हूँ। तो इस तरह से जनाब वो अपना सारा पैसा निकलवा लेता है, जो कि $56 ही होते हैं, मुख्तसर रकम है, छोटी सी रकम है, ये सारी निकलवा लेता है। जब वो बैंक से बाहर निकलता है तो पीछे उसे लोगों के कह कहों की आवाज़ें सुनाई देती हैं जो बैंक की छत तक जा रही होती हैं। तब उसे अपनी हिमाकत का मज़ीद एहसास होता है। उसके बाद से जनाब स्टीफन लीकॉक तौबा कर लेता है कि अब बैंक का नो मोर बैंकिंग, अब बैंक का रुख नहीं करूँगा और अपना जो कैश मनी है अपने ट्राउज़र पॉकेट में और अपने जो सिल्वर कॉइन्स हैं उन्हें अपनी सॉक्स में अपनी बचत को जमा रखूँगा। तो ये उसकी एक बड़ी मज़े का खेज़, बड़ी एडवेंचर है, बड़ी मज़े का खेज़ और ख़ूबसूरत उसने अंदाज में अपनी इस एडवेंचर को बयान किया है। तो बेटे इसको पढ़ते हैं और इसके साथ साथ इसके जो वर्ड्स मीनिंग हैं वो भी हम नोट डाउन करते जाएंगे। ठीक हो गया जी। तो बेटे माई फाइनेंशियल करियर मैंने आपको बताया, फाइनेंशियल मीन मॉनेटरी, मनी रिलेटेड, करियर होता है प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, यानी मेरा माली मुस्तकबिल, ये इसका टाइटल है। को व्हेन आई गो इनटू अ बैंक आई गेट रेटल्ड, रेटल्ड मीन कन्फ्यूज्ड। तो जनाब राइटर कह रहा है कि जब मैं बैंक में जाता हूँ तो आई गेट रेटल्ड, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता हूँ। द क्लर्क्स रेटल मी, क्लर्क जो है वो मुझे परेशान कर देते हैं।
द विकेट्स रेटल मी, विकेट्स क्या होगा, विंडोज़, जो कैश विंडोज़ होती हैं, कैश काउंटर्स होते हैं, उन्हें देखकर मैं परेशान हो जाता हूँ। द साइट ऑफ द मनी रेटल्स मी, एवरीथिंग रेटल्स मी, और वहाँ जो पैसों का लेन देन हो रहा होता है ये देखकर परेशान हो जाता हूँ, और हर चीज़ मुझे क्या करती है, कंफ्यूज कर देती है, परेशान कर देती है। तो what were the feelings of the writer whenever he happened to visit a bank? क्या whenever he went to a bank he got rattled. He got rattled, the clerk rattled him, the windows rattled him, the money rattled him, the sight of money rattled him, and everything rattled him all the time. कि हर दफ़ा वो जब भी जाता रहा है confused ही होता रहा है। The moment I crossed the threshold of bank, threshold क्या होता है, डोर स्टेप, डोर स्टेप कहेंगे दहलीज को, दहलीज को कहा जाएगा कि जिस वक्त मैं बैंक की दहलीज को अबूर करता हूँ, एंड अटेम्प्ट टू ट्रांजैक्ट बिजनेस देयर, ट्रांजैक्ट एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट लेन देन करना, टू ट्रांजैक्ट बिजनेस देयर, और वहाँ लेन देन की कोशिश करता हूँ। आई बिकम एन इररिस्पॉन्सिबल इडियट, इररिस्पॉन्सिबल क्या होगा, केयरलेस, केयरलेस क्या होगा, लापरवाह, इडियट क्या होगा, फूल, कि जब कभी भी मैं बैंक की दहलीज पे कदम रखता हूँ और किसी किस्म के लेन देन के हवाले से कोशिश करता हूँ तो मैं बिल्कुल एक लापरवाह सा, बेपरवाह सा, बेवकूफ़, गैर जिम्मेदार शख्स दिखाई देता हूँ। ठीक है जी। आई न्यू दिस बिफोर हैंड, बिफोर हैंड का मतलब ऑलरेडी, और ये सारी बातें मुझे पहले से ही मालूम थी। बट my salary had been raised to $56 a month and I felt that the bank was the only place for it. लेकिन मेरी माहाना आमदनी में $56 $56 का इजाफा हुआ था और मैं महसूस करता था कि बैंक वो वाही जगह है जहां इस रकम को महफूज किया जा सकता है। So I shambled in, walked in with slow paces, slowly, कि मैं आहिस्ते से चलता हुआ बैंक में दाखिल हुआ, and looked timidly round at the clerks. Timidly क्या होगा, in fear, खौफ की वजह से, खौफ के आलम में, hesitantly, तो जनाब मैं बैंक के अंदर दाखिल हुआ और बड़े खौफ और परेशानी, बड़े खौफ के अंदाज में वहाँ क्लर्कों को देखने लगा। I have an idea that a person about to open an account must consult the manager. मेरे जहन में ये ख्याल बस चुका था कि अगर किसी शख्स को अकाउंट ओपनिंग करवाना है तो उसे सबसे पहले मैनेजर से मिलना चाहिए। ठीक है जी, अकाउंट खुलवाने के लिए मैनेजर से मुलाकात, उससे मिलना बहुत ज़रूरी है। I went up to a wicket marked accountant, marked indicated, निशानदही करना। तो मैं एक जनाब वो काउंटर के पास, एक खिड़की के पास गया और उस पर क्या लिखा था, अकाउंटेंट। द अकाउंटेंट वॉज अ टॉल कूल डेविल। डेविल क्या होता है, सैटन क्या होगा, डेविल, सैटन, शैतान। तो अकाउंटेंट कैसा शख्स था, बताया गया कि दराज कामत, दराज कद, ठंडे मिजाज का, शैतानी सिफ्त फितरत रखने वाला शख्स था। The very sight of him rattled me, confused me, और उसे देखना था कि मैं बदहवास हो गया, परेशान हो गया। My voice was sepulchral means gloomy, और मेरी आवाज़ कैसी हो गई, gloomy, खौफज़दा हो गई, गमज़दा हो गई उसे देखकर। Can I see the manager? I said. मैंने कहा कि क्या मेरी मैनेजर से मुलाकात हो सकती है। एंड एडिड solemnly मीन सीरियसली, और मज़ीद संजीदगी से अपनी बात में इजाफा करते हुए कहा, जी बेटा, अलोन, कि मुझे तन्हा मिलना है। आई डो नॉट नो वाई आई सेड अलोन, कहता है मेरा नहीं ख्याल कि मैंने ये वर्ड, ये लफ्ज़ तन्हा क्यों इस्तेमाल किया था। सडनली सेड द अकाउंटेंट ने कहा यकीनी तौर पर, एंड फेच्ड मीन ब्रॉट हिम, और वो मैनेजर साहब को बुला लाया। कौन, अकाउंटेंट। जी बेटा, द मैनेजर वॉज अ ग्रेव काम मैन। ग्रेव मीन
सीरियस, सीरियस लुकिंग, संजीदा मिजाज, काम मीन क्वाइट, खामोश तबा। तो मैनेजर किस किस्म का शख्स था? खामोश तबा था, ठंडे मिजाज का शख्स था, सीरियस से संजीदा मिजाज का शख्स था। आई हेल्ड माई $56 क्लच्ड इन अ crumpled ball in my pocket. Clutched mean grabbed, gripped, पकड़े होना, जकड़े होना। और crumpled एक और वर्ड आपके पास है, crumpled. Crumpled mean get crushed into folds, get crushed into it means get crushed into folds and also mean creased into folds. It also mean creased, जिसे कहते हैं तुड़ा मुड़ा होना, मुड़ोरा हुआ होना, ट्विस्टेड शेप। तो जनाब कहा जा रहा है इसमें, द मैनेजर वॉज अ ग्रेव काम मैन, मैनेजर बहुत ही संजीदा मिजाज, ठंडे जहन वाला शख्स था, ठंडे मिजाज का शख्स था। आई हेल्ड माई $56 क्लच्ड इन अ crumpled बॉल इन माई हैंड, मैंने अपने $56 को अपने हाथ में मुड़ी हुई शक्ल में पकड़ा हुआ था। इन माई पॉकेट, अपने जेब में मुड़ी हुई शक्ल में पकड़ा हुआ था। आर यू द मैनेजर? आई सेड, गॉड नोज आई डिड नॉट डाउट इट। मैंने उसे कहा कि क्या आप मैनेजर साहब हैं? और खुदा जानता है कि मुझे इसमें शुबा नहीं था कि ये मैनेजर ही है। येस ही सेड, उसने कहा हाँ। कैन आई सी यू? आई आस्क्ड अलोन, क्या मैं आपसे मिल सकता हूँ तन्हा? आई डिड नॉट वॉन्ट टू सी अलोन अगेन, बट विदाउट इट द थिंग सीम्ड सेल्फ एविडेंट, ऑब्वियस, क्लियर, वाजे होना, ऑब्वियस एंड ऑल्सो क्लियर। कहते हैं राइटर कहते हैं मैं दोबारा अलोन का वर्ड इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, लेकिन अलोन तन्हा का लफ्ज़ इस्तेमाल किए बगैर चीज़ें वाजे नहीं हो पाना थी, इसलिए मैंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर लिया। द मैनेजर लुक्ड एट मी इन सम अलार्म। अलार्म क्या होगा? इन फियर होगा खौफ के आलम में, परेशानी के आलम में। तो मैनेजर ने थोड़े परेशानी के आलम में मुझे देखा। ठीक है जी, उसने मुझे, ये बेटा मैं मिटा रही हूँ, यहाँ से इरेज कर रही हूँ ताकि मज़ीद वर्ड्स जो हैं वो आपके साथ शेयर हो सके। तो मैनेजर ने थोड़ी सी परेशानी के साथ मेरी जानिब देखा जी। He felt that I had an awful secret to reveal. Awful mean terrible, horrible, or horrible, खौफनाक। ठीक है जी। और नेक्स्ट वर्ड आपका क्या है? रिवील होगा डिस्क्लोज। वो ये समझा कि मैं कोई खौफनाक चीज़, कोई राज उस पर ज़ाहिर करने वाला था जी। Come in here, he said, and led the way to a private room. उसने कहा कि आइए मेरे साथ आइए, और अपने ज़ाती कमरे में मुझे ले गया। He turned the key in the lock, और उसने ताले में चाबी लगा दी, चाबी घुमा दी। We are safe from interruption here, he said, sit down. Interruption होगा interference। तो उसने कहा कि हम यहाँ हर तरह की मदाखलत से महफूज होंगे। ठीक है जी, हम हर तरह की मदाखलत से यहाँ महफूज होंगे। सिट डाउन, और बैठ जाइए। We both sat down and looked at each other. हम दोनों बैठ गए और एक दूसरे को देखने लगे। I found no voice to speak. मेरे पास बोलने के लिए अल्फाज ना थे। फिर जनाब मैनेजर क्या कह रहे हैं? You are one of the Pinkertons man. Pinkerton क्या है? Pinkerton basically is a secret agency. एक अमेरिकन सीक्रेट एजेंसी है। तो यहाँ पर बताया गया है कि मैनेजर लुक्ड एट मी, यस, क्या पूछ रहा है कि यू आर वन ऑफ पिंकर्टन्स मैन, आई परज्यूम, ही सेड। परज्यूम एज्यूम कि मेरा ख्याल है, फ़र्ज़ एज्यूम फ़र्ज़ करना, फ़र्ज़ कर लेना। तो मैनेजर ने कहा कि मेरा ख्याल है कि तुम पिंकर्टन नामी जो डिटेक्टिव एजेंसी है, सीक्रेट एजेंसी है, एक खुफिया इदारा है, क्या तुम उस खुफिया इदारे के आदमी हो?
ही हैड गैदर्ड, गैदर मीन कॉन्क्लूडेड, कॉन्क्लूडेड होता है नतीजा अखज़ करना, कॉन्क्लूडेड, उसने ये नतीजा अखज़ किया था फ्रॉम माई मिस्टीरियस मैनर, मिस्टीरियस स्ट्रेंज, अजीबो गरीब रवैया, मेरे अजीबो गरीब रवैये से उसने ये नतीजा अखज़ किया था दैट आई वॉज अ डिटेक्टिव, डिटेक्टिव क्या होता है? स्पाई, स्पाई, इन्वेस्टिगेटर, इन्वेस्टिगेटर, वो ये समझा था कि शायद मैं कोई जासूस हूँ। जी, I knew what he was thinking and it made me worse very bad, कि मैं जानता था to bring in bad situation, और मैं जान चुका था कि वो क्या सोच रहा है, क्या सोच रहा था, और इससे मेरी हालत और ख़राब हो गई कि वो तो मुझे कोई जासूस समझ रहा है। No, not from Pinkertons, I said, मैंने कहा कि नहीं, मैं पिंकर्टन नामी सीक्रेट एजेंसी खुफिया इदारे से नहीं हूँ। सीमिंग फीलिंग लाइक, महसूस होता था, टू इम्प्लाई, इम्प्लाई मीन टू मीन, टू मीन मानी होना, मफहूम होना। जी, दैट आई केम फ्रॉम अ राइवल एजेंसी, राइवल कंपेटिटर, कंपेटिटर मुकाबिल। तो मैंने इस तरह से जवाब दिया जिसका माने ये निकलता था कि मैं किसी और राइवल, कोई और तकाबुल में मौजूद किसी और मद्दे मुकाबिल एजेंसी से हूँ। ठीक है जी। तो आगे जनाब क्या कहता है राइटर, टू टेल द ट्रूथ आई वेंट ऑन कंटिन्यूड, मैंने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा कि हकीकत ये है, सच तो ये है जनाब, एज इफ़ आई हैड बीन प्रॉम्प्टेड टू लाई अबाउट इट, प्रॉम्प्टेड इंड्यूस्ड, इंड्यूस्ड होता है कायल करना, माइल करना, और मैंने ऐसे बात की जैसे कि मुझे झूठ बोलने पर माइल किया गया था। तो मैंने क्या कहा उसे कि आई एम नॉट अ डिटेक्टिव एट ऑल, कि मैं एक जासूस नहीं हूँ, आई हैव कम टू ओपन एन अकाउंट, मैं तो यहाँ एक अकाउंट खोलने के लिए आया हूँ। आई इंटेंड टू कीप ऑल माई मनी इन दिस बैंक, इंटेंट का मतलब प्लान, मेरी प्लानिंग क्या है, मेरा प्रोग्राम क्या है, मेरा इरादा क्या है कि इस बैंक में अकाउंट खोलूँ, अपनी रकम जमा करवा दूँ। The manager looked relieved. Relieved mean a bit relaxed and satisfied. बेटे फर्दर कुछ और वर्ड्स को हम इरेज करते हैं ताकि मज़ीद मीनिंग को लिखा जा सके। Relieved क्या होता है? Comforted, comforted, relaxed। अब मेरी बातों को सुनकर मैनेजर जो है वो रिलैक्स था, बहुत मुतमईन था। He concluded now, कॉन्क्लूडेड होता है गैदर्ड, गैदर्ड का मतलब जमा होना भी होता है, गैदर्ड का मतलब क्या होता है? केम टू नो, कि अब बातों से अंदाज़ा लगाना, टू कम टू द कॉन्क्लूशन, कि वो अब इस नतीजे पर पहुंचा था दैट आई वॉज अ सन ऑफ बैरन रूथचाइल्ड और अ यंग गाउड। बैरन रूथचाइल्ड कौन है? बैरन रूथचाइल्ड जो है दैट इज़ अ फैमिली ऑफ इंटरनेशनल बैंकर्स, एक इंटरनेशनल बैंकर्स की फैमिली है। और यंग गाउड कौन है? यंग गाउड अगेन द वेल्थिएस्ट फैमिली, ठीक है, अ वेल्थिएस्ट फैमिली। तो फिर वो समझा कि मैं अगर स्पाई नहीं हूँ, जासूस नहीं हूँ, तो शायद मैं बैरन रूथचाइल्ड या यंग गाउड की फैमिली से आया हूँ, किसी अमीर तरीन फैमिली से आया हूँ। अ लार्ज अकाउंट आई सपोज ही सेड, उसने कहा कि मेरा ख्याल है कि तुम बहुत बड़ा अकाउंट लेके आए हो, यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसे जमा करवाने के लिए आए हो। फेयरली लार्ज, फेयरली क्वाइट लार्ज, क्वाइट काफ़ी बड़ा, क्वाइट लार्ज काफ़ी बड़ा अकाउंट लाया हूँ। आई विस्पर्ड, विस्पर होता है मरमर्ड, सरगोशी करना, तो मैंने सरगोशी करते मरमर्ड, सरगोशी करते हुए कहा कि बहुत बड़ा अकाउंट लाया हूँ। आई प्रपोज प्लान, इरादा होना, इंटेंट, to deposit $56 now and $50 a month regularly। मेरा इरादा है कि अभी $56 बैंक में जमा करवा दूँ और $50 जो है बाकायदगी से जमा होते रहें, आने वाले महीनों में जमा होते रहें। तो हाउ मच अमाउंट द राइटर वांटेड टू डिपॉजिट? इट वाज $56। द मैनेजर गॉट अप स्टूड, खड़ा हो गया, एंड ओपन द डोर। तो what was the reaction of the accountant, of the manager on hearing all this? उसने क्या किया? He got up, वो खड़ा हो गया, and opened the door, और दरवाज़ा खोल दिया। He called to the accountant, फिर उसने accountant जो है accountant को बुलाया, उसको आवाज़ दी। Mr. Montgomery, he said unkindly loud, unkindly
कोल्डली बड़े सर्द अंदाज में उसने कहा कि मिस्टर मॉन्टगोमरी बेसिकली वॉज द अकाउंटेंट इन दैट बैंक. This gentleman is opening an account and he will deposit $56. Good morning. और उसने अकाउंटेंट को कहा कि ये जेंटलमैन जो आए हैं, ये जनाब जो मोअज़्ज़ज़ क्लाइंट हमारे हैं, ये क्या चाहते हैं, $56 अभी जमा करवाना चाहते हैं. तो क्या है कि ये इनका अकाउंट खोल दिया जाए. ठीक है जी, गुड मॉर्निंग. और इसके बाद मुझे कहा सुबह बखैर. आई रोज़ मीन्स स्टूड. मैं खड़ा हो गया, यानी उसे पता चल गया अब राइटर को कि अब मैनेजर जो है थोड़ा एनॉयड है, अब मुझसे मज़ीद बात नहीं करेगा और अकाउंटेंट के हवाले मुझे कर दिया गया है. आई रोज़, मैं खड़ा हो गया. अ बिग आयरन डोर स्टूड ओपन एट द साइड ऑफ द प्राइवेट रूम. तो प्राइवेट रूम जो था, जो ज़ाती सा कमरा था, अलग सा कमरा था मैनेजर का, उसके बिल्कुल साथ एक आयरन डोर था, एक आहनी दरवाज़ा था. और आहनी दरवाज़ा कहाँ होता है, जहाँ पर सेफ़ होती है, बैंक की जो सेफ़ वहाँ पर होती हैं. गुड मॉर्निंग आई सेड एंड स्टेप्ड इनटू द सेफ़. मैंने भी गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर कहा और उस सेफ़ में, उस जगह, उस सेफ़ वो होता है जहाँ पर लॉकर्स भी हैं और जहाँ पर मनी जो है वो उन्होंने सारा सेव किया होता है बैंक वालों ने. तो क्या कहता है राइटर कि मैंने भी गुड मॉर्निंग कहा और उस सेफ़, जहाँ वो सेफ़ थी, वहाँ दाखिल हो गया. कम आउट सेड द मैनेजर कोल्डली क्या होगा, ड्राइली. ठीक है, ड्राइली अनकाइंडली. तो मैनेजर ने बहुत ही नागवार अंदाज में कहा बाहर आइए एंड शोड मी द अदर वे. और मुझे दूसरा रास्ता दिखाया. जी, नेक्स्ट देखते हैं. आई वेंट टू द अकाउंटेंट्स विकेट. मैं अकाउंटेंट की उस कैश काउंटर पर खिड़की के पास गया एंड पोक्ड द बॉल ऑफ मनी एट हिम विद अ क्विक कन्वल्सिव मूवमेंट एज इफ़ आई वर डूइंग अ कंज्यूरिंग ट्रिक. देखिए, एज इफ़ के साथ जो है आपने देखा कि क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब आता है हमेशा, इसका पेयर बनता है एज इफ और वर. तो आई वेंट अप टू द अकाउंटेंट विकेट्स एंड पोक्ड को द थ्रस्ट, पुश्ड धकेल देना, इसको हम थ्रस्ट भी कहते हैं. थ्रस्ट धकेल देना. और कन्वल्सिव क्या होता है, स्पेस्टिक होता है झटके के साथ कोई चीज़ थमा देना. तो मज़ीद यहाँ पर लिख देते हैं स्पेसिटिक. और ये किस वर्ड का मीनिंग होगा, कन्वल्सिव का. जी, स्पेसिटिक, एक झटके के साथ. और नेक्स्ट वर्ड है एज इफ आई वर डूइंग अ कंज्यूरिंग ट्रिक. कंज्यूरिंग होगा मैजिक ट्रिक. तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात इसमें बताई जा रही है कि राइटर कह रहा है कि जनाब मैं अकाउंटेंट के कैश काउंटर या खिड़की के पास पहुंचा और जो गेंद की शक्ल में, वो मैंने अपने तोड़ी मुड़ी शक्ल में पैसे पकड़ रखे थे, मैंने एक बहुत झटके के साथ और उसको थमा दिए, बड़े झटके के साथ उसको थमा दिए, जैसे कि मैं कोई शोबदाबाजी कर रहा हूँ, कोई मैजिक ट्रिक कर रहा हूँ, कोई शोबदाबाजी कर रहा हूँ. माई फेस वॉज घेस्टली पेल. घेस्टली क्या होगा, हॉरिबली, एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली. पेल क्या होगा, वाइट, टू टर्न वाइट. इसको हम पीला पड़ जाना भी कहते हैं. तो मेरा चेहरा जो है वो बहुत ज़्यादा हद तक पीला पड़ चुका था, जर्द हो चुका था, सफ़ेद पड़ चुका था, ये भी कह सकते हैं. हियर आई सेड डिपॉजिट इट. और मैंने इसे कहा अकाउंटेंट को, ये लो और इसको जमा कर लो. द टोन ऑफ वर्ड सीम टू मीन, और जो मेरा लहजा था उससे ये इजहार मिल रहा था जैसे कि लेट अस डू दिस पेनफुल थिंग वाइल द फिट्स इज ऑन अस. फिट्स क्या होगा, अटैक ऑफ strong feelings, attack of strong feelings. स्पेस्टिक, इसको भी कह सकते हैं स्पेस्टिक एंड जर्की मूवमेंट, दौड़ा पड़ जाना. स्पेस्टिक एंड जर्की मूवमेंट. तो मैंने इस अंदाज में उससे कहा कि ये लो पैसे और जमा कर लो, जैसे कि हमें जल्दी काम कर लेना चाहिए, ये तकलीफ दे काम जो है कर लेना चाहिए इससे पहले कि हमें दौरा पड़ जाए.
He took the money and gave it to another clerk. अकाउंटेंट ने वो पैसे ले लिए और उसे एक और क्लर्क के हवाले कर दिया. He made me write the sum on a slip and sign my name in a book. जी, he made me write the sum on a slip. उसने मुझे कहा कि एक स्लिप के ऊपर अपने ये पैसे जो हैं इनके ये पैसों के बारे में लिखो और फिर क्या है एंड साइन माई नेम इन अ बुक, और एक किताब में मेरे दस्तखत करवाए. आई नो लॉन्गर न्यू वॉट आई वॉज डूइंग. मुझे कुछ पता न था कि मैं क्या कर रहा हूँ. द बैंक स्वैम बिफोर माई आइज़. स्वैम होगा मूव्ड, रोटेटेड, घूम जाना. तो बैंक मेरी आंखों के सामने घूम गया. इज़ इट डिपॉजिटेड? I asked in a hollow, vibrating, hollow empty, खाली, खोखली. Vibrating क्या होगा? Shaky, shaky यानी SHAKY, shaky, trembling, लरसती हुई. मैंने जनाब लरसती हुई खोखली आवाज़ में पूछा कि जनाब मेरे पैसे जमा कर लिए गए हैं. इट इज़ सेड द अकाउंटेंट. और अकाउंटेंट ने कहा कि हाँ जी ऐसा हो चुका है. देन आई वॉन्ट टू ड्रॉ अ चेक. फिर मैं अब कुछ पैसे निकलवाना चाहता हूँ. माई आइडिया वॉज टू ड्रॉ आउट $6 ऑफ इट फॉर प्रेजेंट यूज़. और मेरा ख्याल क्या था कि मैं $6 जो है प्रेजेंट यूज़ के लिए, वक्ती तौर पर इस्तेमाल के लिए, मौजूदा इस्तेमाल के लिए कितने पैसे वो विड्रॉ करवाना चाह रहा है राइटर. उसने कहा कि मैं $6 जो है निकलवाना चाहता हूँ. यानी उसका अकाउंट ओपन हो चुका है, अमाउंट डिपॉजिट हो चुकी है. अब ख़याल ये जहन में है कि इस अमाउंट में से कुछ मौजूदा इस्तेमाल के लिए रकम जो है वो निकलवा ली जाए. और ख़याल क्या आता है कि $6 निकालना बेहतर रहेगा. तो बेटे यहाँ तक जो है हम इस लेसन को कंप्लीट करते हैं और बाकी जो इसका जो रिमेनिंग पार्ट है इंशाल्लाह हम इसको कंटिन्यू रखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर. तो मीनवाइल कीप ऑन रिवाइजिंग दिस लेसन अलॉन्ग विद दिस सिनोनिम्स और डिफ़िकल्ट वर्ड्स. ठीक है जी बेटा, थैंक यू वेरी मच. टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड. अल्लाह हाफिज़ बेटे.